অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণী আয়োগৰ মাননীয় অধ্যক্ষ আমাৰ অসমত আহিছে আৰু আমি 7টা জনগোষ্ঠীক যিসকলে অসমত OBC হিচাপে আছিলে কিন্তু চেণ্ট্ৰেল OBC তেওঁলোকে স্বীকৃতি পোৱা নাছিলে তেওঁলোকৰ এটা ভাৰ্চন ইয়াত আজি চবৰ পৰা লোৱা হ'ল। অনাগত খুব সোনকালে আমি ঠিক কৰিছোঁ যে অহা ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে চেণ্ট্ৰেল OBC যি লিষ্ট আছে তাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। প্ৰায় অসমৰ 17 লাখ এই 7টা যি জনগোষ্ঠী আছে এই 7টা জনগোষ্ঠীৰ লগতে আৰু 5টা এনেকুৱা জনগোষ্ঠী আছে যাৰ স্পেলিং অলপ মিষ্টেক আছে, কাৰোবাত এ জেগাত O লিখা আছে, O জেগাত B লিখা আছে, এনেকুৱা 5টা জনগোষ্ঠী আৰু 2টা জনগোষ্ঠী মৰাণ মটক, যিকেইটা নাম একেলগত আগতে মৰাণ মটক এটা OBC কাষ্ট আছিলে। আমি অসম OBC ফালৰ পৰা তেওঁলোকক আমি 2টা নাম কৰিছোঁ, OBC মৰাণ বেলেগ আৰু মটক বেলেগ। এতিয়া চেণ্ট্ৰেল OBCটো তেনেকুৱা হ'ব যে মৰাণ আৰু মটক বেলেগ বেলেগ 2টা জনগোষ্ঠী হ'ব আৰু সকলো OBC হেৰি থাকিব। আৰু এই OBC অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱালৈকে এই জনগোষ্ঠীকেইটাৰ মানে মানুহে খুব ডিপ্ৰাইভ হৈ আছে। তেওঁলোক যদি চেণ্ট্ৰেলত চাকৰি এটা বিচাৰি যায়, কেতিয়াবা ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িবলৈ যায় দিল্লীত, তেওঁলোকৰ মানে যিটো সুবিধা OBC সুবিধা তেওঁলোকে পোৱা নাই। আৰু চিকিৎসা ক্ষেত্ৰতে হওক, চাকৰি ক্ষেত্ৰত বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰিত পাছ কৰে, যেতিয়া ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা আহে OBC নামটো চাই, নামৰ টাইটেলটো চোৱাৰ পিছত যেতিয়া দেখে যে চেণ্ট্ৰেল OBCত নাই, তেওঁলোকক কেতিয়াবা মানে চিলেকশ্যন হওঁতে এই টাইটেলটো ৰাজভৰ বা ভৰ বা সিনহা এওঁলোকক ভাবে যে যিহেতু OBCত মানে বেলেগ ৰাজ্যৰ এই সিনহা মানুহবিলাক OBC হয়, মণিপুৰৰ সিনহাবিলাক OBC হয়। তেওঁলোকক যেতিয়া চিলেক্টেড হৈ যায়, যেতিয়া হেৰি কৰে কাষ্ট চাই, তেতিয়া গম পায় যে অসমৰ OBC আৰু তেওঁলোক চেণ্ট্ৰেল OBCত নাই, তেতিয়া তেওঁলোকে চাকৰি নাপায়। এনেকুৱা বহুত ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ ডিপ্ৰাইভ হৈ আছে। প্ৰায় 16 লাখ অসমৰ 16 লাখ মানে ভোটাৰ এই মানে ক্ৰাইটেৰিয়াৰ পৰা OBCৰ পৰা বাহিৰত আছিলে। মই ভাবোঁ তেওঁলোকে এটা ন্যায় পাব আৰু অনাগত দিনত এই সমাজখন আৰ্থিকভাৱে, সামাজিকভাৱে, ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব, এনেকুৱা আশা আছে। আপোনালোকৰ সহযোগিতা লাগিব। অসমত এনেকুৱা বহুত জনগোষ্ঠী আছে যিসকল মানে OBC হয়, কিবা কাৰণত তেওঁলোক OBC লিষ্টৰ পৰা আঁতৰি গুচি গ'ল। প্ৰায় আজি 20 বছৰ 30 বছৰ তেওঁলোকে OBC বিচাৰি আছে। আমি অসম আয়োগেও অহা খুব কম দিনৰ ভিতৰতে চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰায় 37টা জনগোষ্ঠী আছে যাক আমি OBC স্বীকৃতি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ। তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভে হৈ গ'ল। নেক্সট হিয়াৰিঙো আমি কৰি দিলোঁ। খুব কম দিনতে তেওঁলোকে OBC পাব আৰু এওঁলোকে যিহেতু পাব, এটা অসমৰ ৰাইজে এটা আৰ্থিকভাৱে সকাহ পাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। मुख्यमंत्री महोदय से और सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री से हमें सिफारिश आई हुई थी कि आसाम की कुछ जातियां जो सेंट्रल स्टेट सूची में है, लिस्ट में है, उन 7 जातियों को सेंट्रल सूची में जोड़ना है। इसी को लेकर जैसे कि भर, राजभर, विष्णुप्रिया, मणिपुरी, नेवार, भुजल, सवार, सतनामी और किरण शेख, और कुछ जातियों के इसमें स्पेलिंग मिस्टेक था और एक जाति ऐसी थी वो 2 जाति एक जुड़ गया तो उसको कॉमा मारना था। इसको लेके एक प्रोसेस होती है, प्रोसेस में हमने पब्लिक हियरिंग ली आज सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो सेंट्रल नेशनल बैकवर्ड कमीशन के माध्यम से, और सभी जाति के प्रतिनिधि आए थे, सभी के बयान नोट हुआ है। जन सुनवाई पब्लिक हियरिंग जिसको कहा जाता है, और संबंधित विभाग के अधिकारी, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और यहाँ स्टेट OBC कमीशन के चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन भी उपस्थित थे। हमने सभी के बयान नोट किए हैं और स्टेट में इन जातियों को जोड़ा हुआ है OBC में, बैकवर्ड में। इनको सेंट्रल सूची में भी जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई आज से। इनके पूरे डॉक्यूमेंट हम चेक करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस है, कुछ रूलिंग आ चुके हैं और उस आधार के ऊपर कोई गाइडलाइन, उसके कोई पैरामीटर्स है, वो चेक करने के बाद में इन सभी जातियों को हम सेंट्रल सूची में जोड़ेंगे। और आपके आसाम के सरकार के द्वारा इसकी सिफारिश की जाने से, और यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री महोदय की भी इच्छा है कि जिस स्टेट में हम OBC फैसिलिटी देते हैं इन जातियों को, उन्हें सेंट्रल भी दे। ये उनकी भी हमें सूचना थी, रिक्वेस्ट थी, तो हम इसकी प्रक्रिया आज से प्रारंभ कर रहे हैं। नियमानुसार
हमारे नेशनल कमीशन के मेंबर्स और सेक्रेटरी यहाँ आए हैं हम लोग, और इन सब बातों की हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। विशेष करके इस सातों भी जाति के लोग यहाँ आए थे बड़े उत्साह के साथ में, उन्हें अपेक्षा है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे कमीशन को अभी स्टेटस दिया है, संवैधानिक दर्जा दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट देने से हम पूरे पावर के साथ में काम कर सकते हैं। यह अधिकार हमें दिए हुए हैं, सिर्फ हमें पेपर चेक करना है, और इसके बाद इन सब जातियों को हम नेशनल की सूची में जोड़ेंगे। इतना हमने लोगों से आश्वस्त किया है। इतना ही आपसे हम आज का पब्लिक हियरिंग का उद्देश्य था, जो आपके सामने हम बयान किया है। आज राज्य सरकार और असम के पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यहाँ आज असम गुवाहाटी में यहाँ उपस्थित हुआ है, और हम लोगों ने आज 7 जातियों के लिए जो राज्य की सूची में हैं और उनको केंद्र की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव राज्य सरकार की तरफ से आया था, उस पर जनसुनवाई करने के लिए आयोग यहाँ उपस्थित हुआ है। बहुत अच्छे से आज जनसुनवाई हुई है। कुछ जातियाँ ऐसी हैं, 4-5 जातियाँ ऐसी हैं जिनकी स्पेलिंग भाषा की उसमें त्रुटि है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, कुछ का नाम गलत दर्ज हो गया है, उसको ठीक करना है, और बाकी जातियों को राज्य की सूची में शामिल हैं ऑलरेडी, उनको केंद्र की सूची में शामिल करना है, जिससे कि उनको केंद्र की सूची में आने पर और उनको लाभ शैक्षिक क्षेत्र में, एजुकेशन साइड में और जॉब की साइड में उनको लाभ मिल पाए। इसलिए उसके लिए आज हमने सुनवाई की थी, और बहुत अच्छे माहौल में सभी जातियों के प्रतिनिधि यहाँ आए थे। उन्होंने जो है जन सुनवाई में पूरा सहयोग किया, और हम लोगों ने उनकी बातों को ध्यान से सुना है। अब जितनी शीघ्रता से राज्य सरकार की तरफ से हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में लेटेस्ट सर्वे उनका आ जाएगा, तो हम उसी हिसाब से शीघ्र अतिशीघ्र उस कार्रवाई को आगे बढ़ा देंगे। नहीं, कुछ जो 7 जातियों के लिए प्रस्ताव आया है राज्य की तरफ से, और उन 7 जातियों के प्रस्ताव को हम लोगों ने सुन लिया है। जैसे जैसे राज्य सरकारों की तरफ से प्रस्ताव आते हैं, तो हम जनसुनवाई के माध्यम से उस समाज के लोगों से बातचीत करके और राज्य सरकार से बातचीत करके अधिकारियों से उसका लेटेस्ट सर्वे, उसका क्या सामाजिक स्थिति है, क्या आर्थिक स्थिति है, क्या राजनीतिक स्थिति है, उस पर सारे जितने भी आयाम हैं उन सब पर देख के निर्णय किया जाता है। हाँ, सुना है नेवार जाति का भी, जो आज 7 जातियाँ थी उसमें ये भर, राजभर और विष्णुप्रिया मणिपुरी, नेवार, भुजेल, सावर, सतनामी और किरण शेख, इन जातियों को केंद्रीय सूची में जो है शामिल करने का था। और कुछ जातियां हैं उनको स्पेलिंग मिस्टेक की उनकी समस्या थी, कुछ गलत स्पेलिंग उनकी दर्ज हो गई है। तो 7 जातियों के बारे में प्रस्ताव आया था सुनवाई का, और हम लोगों ने 7 जातियों के बारे में यहाँ सुनवाई की है। देखिए, ये राज्य का विषय है। अगर राज्य चाहेगा, राज्य सरकार चाहेगी, राज्य का आयोग हम लोगों को कोई प्रस्ताव भेजता है और उसका लेटेस्ट सर्वे उस समाज का करके भेजता है, तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं, जन सुनवाई करके उसकी। ये राज्य का विषय है। राज्य अगर चाहेगा, राज्य सरकार जिन जातियों को केंद्रीय सूची में शामिल करना चाहेंगे, तो वो हम लोग उसको सुनवाई करके करते हैं। हाँ, वो प्रोसेस है पूरी, उसके कागज़, उसके जो कागज़ उपलब्ध कराए जाएंगे उनका अध्ययन करना होता है, और उनमें कोई त्रुटि तो नहीं है, वो उसमें समय लगता है थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग, लेकिन अपने पास आयोग हम लोग रोकते नहीं हैं, जैसे ही हमको कागज़ मिलेंगे हम तुरंत उस पर कार्रवाई आरंभ कर देते हैं। क्राइटेरिया स्टेट में तय हुआ है, स्टेट की तरफ से हमारे पास आता है, और जब स्टेट की तरफ से आता है, अगर हम उनके कागज लेटेस्ट सर्वे से अगर हम लोग सहमत होते हैं, तो उसको कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।